અમદાવાદમાં સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની સાથે અડપલા. શ્રેયસ સ્કૂલના શિક્ષક સામે આક્ષેપ. ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીની સાથે અડપલા કરતા વિવાદ થયો છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ લીધી છે ગંભીર નોંધ. ઘટના મામલે શાળાને ખુલાસો કરવા નોટિસ આપવામાં આવી છે. શિક્ષકને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવા ડીઈઓનો આદેશ. વાલીએ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને ફરિયાદ કરતા ઘટના સામે આવી. ડીઈઓ અધિકારીઓ શાળામાં જઈ ઘટનાની કરશે તપાસ. શ્રેયસ શાળામાં ફી વિવાદ બાદ વિદ્યાર્થીની છેડતીનો મામલો આવતા ફરી વિવાદ થયો છે. ડીઈઓ રોહિત ચૌધરીના મતે વાલીએ આ અંગે લેખિત અરજી કરી હતી. વાલીના મતે અગાઉ તેમણે સ્કૂલ સંચાલકોને અરજી કરી હતી, પરંતુ સ્કૂલ સંચાલકોએ આ અરજી પર તપાસ કરતા હોવાનું કહી રહ્યા છે. જોકે આવી સ્થિતિમાં ત્વરિત પગલાં લેવાના હોવાથી સંચાલકોને આ નોટિસ અપાઈ છે. ઉપરાંત ડીઈઓ કચેરીના અધિકારીઓ તરફથી પણ તપાસ આરંભાઈ છે. ખાનગી શાળા શ્રેયસમાં એક વાલીએ અહીંયા ફરિયાદ આપી છે કે એમની દીકરીને જે સ્કૂલના એક શિક્ષક દ્વારા શારીરિક અડપલા કરવાનો પ્રયાસ કરેલો છે એવી લેખિત ફરિયાદ રજૂ કરી છે. અને આ ફરિયાદને ધ્યાને લઈ અમે ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ સત્વરે શાળાના સંચાલક મંડળને આચાર્યને સૂચના આપી છે કે સત્વરે પ્રાથમિક ધોરણે આ શિક્ષક સામે આક્ષેપિત જે કોઈ છે તેની સામે પગલાં લો અને આની જે કોઈ કરેલી કાર્યવાહી છે અને સમગ્ર ઘટનાનો સત્વરે અહેવાલ કચેરી સમક્ષ રજૂ કરવા સૂચના આપી છે. આ કેસની પૂરી તપાસ પોસ્કો ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે કરવામાં આવી હતી. તે કાર્યકરની મનોવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણનો રિપોર્ટ પણ તપાસ પછી કરાવવામાં આવેલો છે. વાલી દ્વારા પોલીસ તપાસ શાળાની કરવામાં આવી હતી, ત્યારે શાળાએ તે કાર્યકર પર એફઆઈઆર દાખલ કરવાની રજૂઆત કરી હતી, પણ તે તરફ વાલી દ્વારા કોઈ કામગીરી થઈ નથી. હવે વાત કરીએ યુદ્ધની. ઇઝરાયલમાં ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ન્યૂઝ 18 પહોંચ્યું છે. યુદ્ધની સ્થિતિનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ. યુદ્ધના મેદાનથી લાઈવ દ્રશ્યો. ઇઝરાયલ હમાસ યુદ્ધમાં 1600થી વધુના મોત થયા છે. અત્યાર સુધીમાં 5000થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ઇઝરાયલના 900થી વધુ લોકોના મોતની માહિતી છે. 4 દિવસમાં હમાસના પણ 400 સ્થળો તબાહ કરાયા છે. ઇઝરાયલની સેનાનો હમાસને જડબાતોડ જવાબ. દુનિયાના અનેક દેશોએ ઇઝરાયલને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે. અમેરિકાએ પણ ઇઝરાયલને મદદનું કર્યું છે આહવાન. અમેરિકા ઇઝરાયલની સીમા પર જહાજ તૈનાત કરશે. ઇઝરાયલે પોતાની સીમા પર 3 લાખ સૈનિકો કર્યા છે તૈનાત. ઇઝરાયલની સેનાએ નાગરિકો માટે એક એડવાઇઝરી પણ જાહેર કરી છે, જે પ્રમાણે 3 દિવસ સુધી શેલ્ટર હોમમાં રહેવા માટે કહેવાયું છે. તો આ યુદ્ધને કારણે ગાઝામાં 1,37,000 કરતાં વધુ લોકો પહેલેથી જ વિસ્થાપિત થયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. देखिए, सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है. सड़क पे अगर गाड़ियां दौड़ भी रही हैं तो जीवन और मौत का फासला बहुत कम है, क्योंकि गाजा पट्टी से एस्केलॉन काफ़ी नज़दीक है. लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं एस्केलॉन में, जो गाजा पट्टी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है. कल रात को यहां मिसाइल से हमला हुआ और स्थिति आपको दिखाएंगे कैसी स्थिति. ये देख सकते हैं, जो मोटे मोटे कांच है वो बिल्कुल टूट गए हैं. यहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया है. करम सिंह, आप क्लोज मत जाइए, वहाँ ओपन एरिया है. ये आप गड्ढा देख सकते हैं. और दूसरी तरफ जो मिसाइल फटता है, आप इधर दूसरी तरफ आपको दिखा दें. करम से कहेंगे, ये देखिए हर तरफ कांच कांच. बाहर अभी आप थोड़ा वक्त दीजिएगा. इस तरह से कांच हर जगह बिखरा पड़ा है जब मिसाइल हमला होता है. और स्प्लिंटर का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ की दीवारों में आप देख सकते हैं जो स्प्लिंटर निकलते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि जब मिसाइल दागे जाए तो आप लेट जाए ज़मीन पर. ये स्प्लिंटर यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं. प्रभाव क्या होता है यहाँ के कांच. ये जो दरवाज़ा है, ये इसकी स्थिति क्या हो गई है, ये आप देखिए. ये आपको दिखाना चाहिए. हम बात भी करेंगे यहाँ से, आप बात करेंगे. इधर आइए करम, आप दूसरी तरफ. मैम प्लीज़ यू कैन कम. मैम प्लीज़ कम दिस वे. आपको बात करेंगे कैसे कुछ हुआ था, हाउ इट ऑल हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड. When it happened 4 o'clock yesterday, when I just come from shopping. 4 a.m. 4 a.m. I just come from shopping. I hear the alarm going with my sons to the stairs because my house is upstairs, and his son protects us. Then we heard a lot of bombing. We know it was near,
And then we got out, we seen this, and all the apartments are injured. 4 बजे सुबह में यानी रात को ये यहाँ पहुंची और इधर आपको दूसरी तस्वीरें दिखा दे। यहाँ अलग अलग जगह बमबारी हुई है, वो तस्वीरें दिखाई। यहाँ देखिए, ये सामने में 7वें फ्लोर पे वहाँ भी एक मिसाइल गया था, बॉम्ब गया था। यहाँ करम आपको दिखा रहा है 7वां फ्लोर। यहाँ से दिखाइए करम, ये इलाका दिखाइए, इधर आकर क्लोज, इधर से दिखाइए, ये आपको दिखाते। हर घर की स्थिति देखिए। वहां सामने में देखिए, आपको दिख रहा होगा हर तरफ मिसाइल से हमला हुआ है। वो सामने में जो बिल्डिंग है, नीचे एक होल आपको दिख रहा होगा, वहां बॉम्ब से हमला हुआ है, ऊपर में मिसाइल से हमला हुआ है। और इधर ये जो घर है, ये जो सामने हमारे बिल्डिंग है, यहाँ भी एक मिसाइल बॉम्ब यहाँ पहुंचा था। तो अलग अलग जगह लगातार मिसाइल से हम लोग, कांच जो है वो टूटे और बिखरे हुए दिखते हैं। देखिए, खबर आई है कि हमास ने संकेत दिया, लेकिन अभी इस तरह से आधिकारिक कोई बात नहीं की गई। लेकिन इंडिया में जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, इजराइल की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए एक खास चीज दिखा रहे हैं। यहाँ के घरों की बनावट देखिए। एक तो ये है, यहाँ हमास के लड़ाके अगर आतंकवादी आ गए और इसके अंदर आप लॉक हैं अगर, तो और आतंकवादी यहाँ खड़ा है, तो उसके बचने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह के स्केप जोन होते हैं, इसको आप खोल सकते हैं। जैसे आपको नीचे जाने के लिए भी और ऊपर जाने के लिए भी, इधर से आपको दिखाते हैं। अगर आतंकवादी हमास, इजराइल में इसी तरह के घर बने होते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे इस पे बनाया गया होता है। अब इसको उठा देंगे, देखिए इसको उठा देंगे, इसको उठा दिया। अगर आतंकवादी अंदर भी आता है तो आप इससे ऊपर चले जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे, यहां आ जाएंगे। ऊपर दूसरा हॉल है, तो इस तरह से बनावट होती है घरों की। और फिर हम इसे नीचे कर देते हैं, तो इस तरह की बनावट ना सिर्फ यहाँ एश्केलॉन में, जब क्योंकि यहाँ तो लगातार इस तरह से हमास, पैलेस्टीन और इजराइल के लोगों के बीच में बमबारी होती है, मिसाइल अटैक होते हैं, लेकिन बहुत लंबे वर्षों के बाद बड़ा इस तरह का अटैक हुआ है। तो एक ये है कि आप ऊपर चले जाएंगे, और ये सीढ़ी भी बहुत मजबूत है। और अगर आप अंदर हैं तो सुरक्षित है। सेफ सिर्फ मिसाइल से नहीं है, बल्कि अगर आतंकवादी भी आ जाएगा, 10-15 लोग भी आ जाएंगे, तो इसे तोड़ना मुश्किल है। अगर तोड़ भी लिया तो उससे पहले आप एस्केप कर जाएंगे। या तो ऊपर, अगर आतंकवादी ऊपर है तो आप नीचे जा सकते हैं, अगर नीचे है तो ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह के सेफ जोन क्रिएट किए गए होते हैं। સીતાજીએ જ્યાં આગળ એશિયન ગેમ્સથી જે ખેલાડીઓ જીતીને આવ્યા છે ભારતીય, તેની સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મુલાકાત हमने કરી રહ્યા છે। जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था
कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले